One, that was the radiation, because it is a charged particle, because it is very small, its mass is comparable to the. So they have a collision, and in that collision there is a possibility of scattering with a bigger angle. So whenever it changes its path, there is a deceleration or acceleration, both can happen. And due to that, because any charged particle, if it is accelerated or decelerated, it will emit a radiation. So the electron lose the energy in two forms. One is due to the Coulomb interaction and radiation. तो वो दोनों केसेस थे. The basic difference ये है. और path का difference क्या है? The heavy particles they follow straight line within the medium, and the light particles such as beta or positron they follow erratic paths. Erratic means something like a not in order, zigzag. You can say exactly not in order, erratic. So it is going somewhere, anywhere, anytime. And when we come to the third particle, which is actually the gamma, and these gammas are hardly having any charge, they are of zero charge, and their energy is Coulomb, that is around 10 of megaelectron volts. So they do the process in three different ways. Not only a single process is followed, they are doing in the, is they are losing their energy in a three different ways. One was photoelectric, which is usually you know about concerned with the metal. There is a work function, but in this case there is a binding energy, because the electron is to be removed from the orbit of any atom within the medium by the gamma photon. So the kinetic energy of the electron, which is being emitted or which is being removed from the atom, that will have how much energy? That will be the how much photon is having the energy minus the binding energy, because binding energy cannot make it out, and then it will have a certain kinetic energy. That electron may come out of the medium, or that electron may dump within the medium also. So there is a possibility. The second category is the displacement of electron, and that is actually the Compton scattering. Means the gamma photon loses its energy, or it become a photon with a lesser energy value. जिसका h थोड़ा सा कम हो जाएगा, which will be more lighter way. It can convert into infrared, it can convert into visible, it can convert into any other form if it is of a very high energy. So that is done by the electrons of the atom and due to the Compton scattering. Derivation मैंने नहीं करवाया इसका, derivation आपने पहले से कर रखा है. ये डेल्टा लैम्डा यानी लैम्डा शिफ्ट किससे रिलेटेड होता है? cos थीटा और आपको Compton वेवलेंथ से रिलेटेड होता है, जो h/mc होता है. The third category was the pair production. Means the photon convert, or the energy convert into a material. The photon convert into a electron and positron pair. And we have also seen that this cannot happen in a free space, because momentum is not conserved in the free space. For momentum conservation, we need an atom which will recoil once this conversion has done. एक बार जब conversion होगा, तो जो भी momentum आपके positron और electron they are taking away, whatever the momentum they are having, that should match with the momentum of your recoiling atom or nucleus. जो भी वहाँ पे present होगा ना, यहाँ पे हमारे लिए atom ही है, because the things is happening near the nucleus, but as a nucleus we don't see the nucleus is shifting, but we see that atom as a whole is shifting from its position. So these are the three categories of the three category of interaction, or three different way of interaction by a photon, gamma photon in any particular material. And there is a energy change also. There is a means if you change the energy of the gamma photon, means at low energy what will happen, at higher energy what will happen, and at mid value of energy what will happen. So if we plot that, then we can see that some of the effect is happening at lower energy scale, and some are happening at the higher energy scale, and some are having a bigger range also. So I will just plot for the two cases. That is one for the carbon. If you have a carbon system, and in carbon you are bombarding a gamma photon, and that gamma photon is having energy from 0.01, yani tens of mega electron volt, tens of kilo electron volt to 100 of mega electron volt. 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, but at least 10 से या 10 से ऊपर. So just we see the curve, how the curve will look like. So this is the actually the you can say the
relative with what kind of means process is going on. So that is in relative form. So we are just putting 0 and 1. So 1 is around 100% and 0 is 0%. And in between that will be the percent form. So this number is roughly 0.01 and this number is 100. And these are in mega electron volt. That is for gamma. Gamma की जो energy है, you can say E gamma. That is in mega electron volt. And in between it is 1. So this is the order of, you can say the scale क्या है ये? अगर इस फॉर्म में हम स्केल लिखते तो क्या स्केल कहते हैं इसको? They are not uniform. Scale is non-uniform. 10 के ऑर्डर में वेरी हो रहा है. What the scale? क्या नाम होता है इस स्केल का? किस स्केल में प्लॉटेड है? नहीं पता. Last one, that is with green. Okay. So this green one is pair production. The blue one is Compton. Compton effect. Compton effect. And the red one is photoelectric effect. So at lower energy scale, means if the gamma photon is around in the kilo electron volt, then most probably the photoelectric effect is going to means lower energy अगर होती है गामा की तो आपके पास ये लॉगरिथमिक स्केल होता है, इसका लॉगरिथमिक स्केल कहते हैं, जिस 10 में जा रहा है. ठीक है, दिस इज अ फोटो, ये लीनियर स्केल है. लीनियर में तो फिगर विल लुक लाइक डिफरेंट वे. ये सिमेट्रिक नहीं देखेंगे, ये सिमेट्रिक देखेंगे. उसको आप एक्सपांड कर देते हैं. दिस इज अ लॉगरिथमिक. सो द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी मोर डोमिनेटिंग at the lower energy scale. Means less than 1 mega है तो chances है आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपके 100 या 10s of या 100s of के इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका बाइंडिंग एनर्जी होता है. तो बाइंडिंग एनर्जी के कंपैरेबल अगर आपका गामा फोटोन की एनर्जी है तो you will follow photon. The gamma photon will follow the photoelectric effect mostly. When its energy increases, then it will follow the Compton effect or Compton scattering, you can say. So Compton effect is in the mid. Is 0.1 से लेकर के 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आपका Compton effect उससे थोड़े कम रेंज में Compton effect static है. Means 100% there is a chance of Compton effect. We know that there is a bit photoelectric effect भी हो सकता है, Compton भी effect हो सकता है at low energy scale. But dominating is the photoelectric. As you increase the energy, when it is 10 or more than that, 20, 10, 15, 30, 40, something like that, then there is a possibility of pair production. पेयर प्रोडक्शन आपका हायर एनर्जी स्केल पे होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका लोअर एनर्जी स्केल पे होता है, और काउंटर इफेक्ट आपका एक कार्बन के लिए कार्बन मटेरियल के लिए. तो कार्बन आपने अगर कोई यूज किया है उसको, लेड के लिए भी है, लेड के लिए भी गेट द सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर, बट दिस स्क्वीजेस अ लिटिल बिट मोर. काउंटर इफेक्ट का जो स्ट्रेंथ है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है लेड के लिए. लेड में आपके या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा मैक्सिमम, otherwise at later stage it will have a pair production. So with energy scale obviously pair production के लिए एटलीस्ट मुझे कितना एनर्जी चाहिए, आपकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए फोटोन के लिए, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए, एटलीस्ट greater than or equal to what number if you want to produce a pair of positron and electron. तो hnu की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Can it be kilo electron volt? Can it be kilo electron volt? Yes, no, कुछ बोलोगे? ये वैल्यू किसके बराबर या किससे बड़ी होनी चाहिए if you want to have a pair production? हाँ बताओ. 1 mega electron volt.
यस, 1 पॉइंट समथिंग, 0.511 होता है ना रेस्ट मास, तो एटलीस्ट इट शुड बी मोर देन 1.0 एंड 22 मेगा इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा होना चाहिए। मीन्स द पेयर विल फॉर्म विद रेस्ट मास, रेस्ट मास तो होना ही चाहिए ना, तभी तो पेयर फॉर्म होगा। उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है, इट डज नॉट केयर, बट एटलीस्ट इट शुड बी मोर देन 1। तो ये इसलिए वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो 1 से थोड़ी सी ज्यादा होगी तभी पेयर प्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। मींस इफ यू डोंट हैव अ काइनेटिक एनर्जी फॉर पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन व्हेन दे आर जनरेटेड, दे विल कंबाइन वेरी फास्ट। अगर उनके पास कोई मोमेंटम होगा, कोई एनर्जी होगी, कोई वेलोसिटी होगी इवन आफ्टर द प्रोडक्शन, देन दे विल मूव अपार्ट। अदरवाइज देयर इज अ बिग चांस कि भाई आपके पास जनरेट होते ही दे विल एनिलेट। सो दैट इज व्हाई वी से कि एटलीस्ट इस वैल्यू से ज्यादा तो होना चाहिए, यानी इससे नीचे तो पेयर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। ये मींस बाकी दोनों इफेक्ट हमारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। समवेयर 1 या 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि what could be the minimum value of h nu for a pair production, so you can write this one. Obviously इससे ज्यादा ही चाहिए because you need a recoil also, तो थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा that will be better because आपके प्रोसेस को गवर्न करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को प्रोड्यूस, या इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को प्रोड्यूस ही नहीं करना है, आपको एक हैवी मास को, आपको कुछ मोमेंटम भी ट्रांसफर करना है, कुछ वेलोसिटी भी देनी है। इट मींस इट शुड बी ग्रेटर देन दिस नंबर, देन ओनली इट इज पॉसिबल, क्योंकि ये केस वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है, तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन दैट। एक और टॉपिक है इसमें आपका न्यूट्रॉन इंटरेक्शन विथ मैटर, तो वो पहले से पता नहीं कितना डिटेल में जाना है, बट न्यूट्रॉन इंटरेक्शन एक्चुअली इट इज नॉट सो इजी। पूरा एक चैप्टर है आपके क्रेन में भी। तो न्यूट्रॉन इंटरेक्शन के बहुत सारे फॉर्म है, मीन्स न्यूट्रॉन की एनर्जी पे डिपेंड करेगा। If the neutron energy is in a kilo electron volt or tens of kilo or mega or less than kilo, then what is going to happen? So there are so many different, किसी केस में वो कैप्चर हो जाता है, किसी केस में वो रेडिएशन एमिट करता है आफ्टर कैप्चरिंग, किसी केस में वो एम्बेड हो जाता है, किसी केस में एम्बेड होने का जो कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन, मींस इट एक्चुअली डिपेंड अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन एंड हाउ द रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन। तो रिएक्शन के 3 कैटेगरी हमने पहले भी डिस्कस कर लिए थे कि लो एनर्जी होगा तो कंपाउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, आफ्टर दैट देयर विल बी एमिशन ऑफ समथिंग, एंड जब अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए यानी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है एनर्जी, देन देयर इज अ डायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन के एग्जांपल आप लिख सकते हो कि इट कैन डू द पिकअप रिएक्शन, इट कैन डू द स्लिपिंग रिएक्शन, दोनों पॉसिबिलिटी है। When you go for further more, if your energy is more than that, then there could be a different interaction that can be captured permanently in the nucleus, that is also possible। तो बहुत सारे वेरिएशन है, तो मुझे लगता नहीं कि इतना डिटेल में इसमें जाना चाहिए हमें। अगर होगा तो कुछ एक आधा पेज में नोट्स में डाल दूंगा, बट जो न्यूट्रॉन के फॉर्म है, जस्ट आई विल राइट कि हम न्यूट्रॉन को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तीनों रेडिएशंस हैं, बट न्यूट्रॉन वी विल ट्रीट एज अ particle and we will say कि हम न्यूट्रॉन को कैसे क्लासिफाई करेंगे, मींस व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन and what the name it is given to the neutron. So if the energy is roughly of the order of 0.025 electron volt, very low energy, very low, means it is hardly, ये किसके आसपास की वैल्यू है, कैन यू सजेस्ट ये एनर्जी किस रेंज की है, मतलब किस किसी से रिलेट कर सकते हैं एनर्जी किसके पास होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास तो देखो इससे ज्यादा होती है ना, 13.6 मिनिमम होती है, फिर उससे थोड़ा और कम, उससे कम, उससे कम, इट इंक्रीजेज इन माइनस वे, और 13.6 इज अ बिग वैल्यू इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो ऐसी एनर्जी किसके पास होती है, which particle have this kind of energy? Then we have 1 electron volt, and then we have the range of 1 kilo electron volt, and then we have a range of 100 kilo electron volt, or up to 10 mega, जिसमें कि डायरेक्ट रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। जस्ट 2 मिनट होल्ड करो, कोई टीचर है वो बात कर रहे हैं, बस हो जाने वाले हैं।
हाँ बताओ, ये रेंज किसका है, कुछ आइडिया है? व्हाट इज दिस रेंज इज? 30 डिग्री पे थर्मल एनर्जी कितनी होगी? 30 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर। थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं, मींस न्यूट्रॉन if they have energy, kinetic energy in the range of thermal value, means room temperature की energy जो होती है roughly 0.25, 27 या 28 आता है। आप मल्टीप्लाई करके देखा 300 केल्विन, उसके साथ k मल्टीप्लाई करो, you will get the answer. So if it is in this range, then these neutrons are called thermal neutron, and they are very slow. They don't go for nuclear reactions. They are very slow. They can do means they can be get captured by the nucleus. जो हमने एक रेजोनेंस रिएक्शन किया था ना, उस तरह के केसेस की पॉसिबिलिटी, या सिंपली क्या होगा कि कैडमियम रॉड है, वहां पे थर्मल न्यूट्रॉन्स को हम कैप्चर करते हैं। यू हैव हर्ड दिस लाइन मेनी टाइम्स कि आपके फ्यूजन रिएक्शन से आपका क्या एमिट होता है, थर्मल न्यूट्रॉन होता है। थर्मल न्यूट्रॉन को आपको कैप्चर करना टू स्टॉप द फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन को स्टॉप करने के लिए आपको थर्मल न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करना होता है। यू कैन हैव अ डिफिशिएंट न्यूक्लियाई, और वो डिफिशिएंट न्यूक्लियाई इतना डिफिशिएंट होना चाहिए कि न्यूट्रॉन को कैप्चर बड़ा इजीली कर ले, इवन दो न्यूट्रॉन डजंट हैव काइनेटिक एनर्जी, दे आर जस्ट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द nucleus, so they can be get captured. These are called thermal neutrons. It's a higher energy, means those neutron have 1 electron volt, which is not very good value, but at least थोड़ा सा ज्यादा है। They are called epithermal. They follow different kind of reaction. When you have 1 electron volt, so they could follow some kind of compound reaction. So they are called as slow moving neutron. इनको हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कहते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड फास्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से उनके इंटरेक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तीनों के इंटरेक्शन भी चारों के अलग अलग होंगे। तो इतनी डिटेल में कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस तो ऑब्वियस यही है कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस है, जो हैवी चार्ज पार्टिकल आपके जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे वो ये बिहेव नहीं करेगा। तो न्यूट्रॉन का बिहेवियर मैक्सिमम चांसेस हैं वो इलेक्ट्रॉन से नहीं, न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है। न्यूट्रॉन में आपके ज्यादा चांसेस है न्यूक्लियर रिएक्शन जैसा कुछ हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन हो सकता है, डायरेक्ट रिएक्शन। तो देयर विल बी अ न्यूक्लियर रिएक्शन कंसर्न विद द these you can say these neutrons. तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट नहीं करता है। पिछले हमने सारे केसेस जो देखे उसमें सभी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस से बहुत ही रेयरली कोई इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आपका हैवी चार्ज पार्टिकल भी आपके इलेक्ट्रॉन से अपनी एनर्जी लूज कर रहा था, बीटा पार्टिकल भी आपका इलेक्ट्रॉन के थ्रू लूज कर रहा था, और जो गामा फोटोन है वो भी इलेक्ट्रॉन के थ्रू लूज कर रहा है। पहले दोनों केसेस तो इलेक्ट्रॉन के साथ है, तीसरे में वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है, but neutron does not interact with the electron. So this is the basic difference, and they follow maximum time they follow the nuclear reaction. या तो रिएक्शन होगा या तो कैप्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एंड करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, और जो भी चीजें कम हो जाएंगी ज्यादा हो जाएंगी that we will discuss in the later on. ओके अच्छा, मैंने नीचे लिखना शुरू किया था, ऊपर मैं किसी को शो कर रहा था, उसको मैं हटा देता हूँ। लेट मी जस्ट all these things. Right. Okay. So now we go for the new unit, and that is your this one, detectors. तो आज हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, और because once we have done the interaction, then we can make the detectors. So we will start with the detectors. ठीक है, so again we need to classify कि हमें डिटेक्टर जो बनाना है वो किस कैटेगरी का बनाना है। देयर आर सो मेनी। आपने एक एग्जांपल देखा होगा
the neutrino, when enters into the matter, it has to travel so much long distance to have any interaction. हमने कहीं एक बीच में पढ़ा हुआ है, अगर नहीं भी याद होगा तो जाके पीछे नोट्स में देखना. That neutrino, which are very light particle, not interacting particle, they interact through masses only. So they, when they are interacting, we need a very long detector. अगर हम चाहते हैं कि एक न्यूट्रॉन को भी, अगर न्यूट्रिनो को भी कैप्चर करना है मुझे, या उसका कोई रिएक्शन चेक करना है, because it is a very least reactive entity in the universe. So we need a very long detector, which we have calculated around light years में आ रहा था उसका value, 10 years something light years. So if you have a means your detector, if you want to capture certain radiation, your size of the detector will vary. Even size तो vary करेगा ही, even ये भी vary करेगा कि आप किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हो. अगर गैसियस है तो you need a bigger size, लिक्विड है तो थोड़ी सी डेंसिटी इंप्रूव हो गई तो you need a smaller size. अगर कोई सॉलिड डिटेक्टर है तो you need a very small size because the density has increased. तो डेंसिटी के साथ भी आपका वेरिएशन आएगा डिटेक्टर में. उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि व्हाट यू वांट टू डिटेक्ट. आप अगर पार्टिकल से डिटेक्ट करना है तब तो चलो पार्टिकल डिटेक्ट करना है. देयर वाज अ नेटवर्क इशू, जस्ट एक मिनट के लिए क्या होगा, एक आधा सेकंड के लिए क्या होगा, मुझे यहाँ दिख गया था इसलिए बता रहा हूँ. अदरवाइज मे बी यू मे हैव हर्ड कि मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी. सो डिटेक्टर आपके डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जो डिटेक्ट कर रहा है उस पर वेरी करेगा. आपका इनकमिंग रेडिएशन का इंटरेक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा उसका डिजाइन. इवन इट विल डिपेंड कि आप जो डिजाइन बना रहे हो डिटेक्टर का, तो वो उसको मेजर क्या करना है. आपको चार्ज मेजर करना है इनकमिंग पार्टिकल का, उसका स्पिन मेजर करना है, उसका मोमेंटम मेजर करना है, या उसका एनर्जी मेजर करना है. तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट केसेस वी हैव टू मेक अ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिटेक्टर. तो डिटेक्टर की क्लासिफिकेशन बहुत सारी है. देयर इज नो फिक्स्ड कि आपको ये डिटेक्टर है वो यही होता है, बस यही न्यूक्लियर डिटेक्टर है. नो, देयर इज सो मेनी डिफरेंट वे वी कैन क्लासिफाई. तो हम मेथड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं. पहला जो कि मेथड पे बेस्ड है, तो मेथड पे व्हाट आई हैव रिटन, मेथड बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स. मींस इफ यू वांट टू मेजर द चार्ज, आपको चार्ज मेजर करना है. आपको जो बेसिक एम है कि आपको चार्ज आपके पार्टिकल यानी प्रोटॉन आ रहा है, या अल्फा पार्टिकल आ रहा है, या न्यूट्रिनो आ रहा है, या कोई बीटा पार्टिकल आ रहा है, या न्यूट्रॉन आ रहा है, तो किसी के पास चार्ज है किसी के पास नहीं. तो यू वांट टू डिटेक्ट कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ दिस वन. तो चार्ज के बेसिस पे आपका डिटेक्शन हो रहा है. और जो पार्टिकल नॉर्मली क्या होगा, न्यूट्रॉन आपका अगर एंटर करता है किसी मटेरियल में, तो अभी हमने डिस्कस किया कि वो मैक्सिमम चांसेस क्या होगा, दैट विल डू न्यूक्लियर रिएक्शन. तो जो अनचार्ज पार्टिकल है ना, जब भी आते हैं तो उनका इंटरेक्शन भी न्यूक्लियस के साथ ज्यादा होता है रादर देन योर द इलेक्ट्रॉन. और ऑब्वियसली द इलेक्ट्रॉन इज द मेन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं होता है. तो मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं कि अनचार्ज पार्टिकल विल इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियस. उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है. दैट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज न्यूक्लियस में अगर कोई न्यूट्रॉन कैप्चर होता है तो वी हैव टू वेट फॉर सर्टेन टाइम कि वो कोई गामा रेडिएशन एमिट करेगा. हमने एक केस किया था ना जिसमें हमने देखा था न्यूट्रिनो अगर एंटर कर रहा है तो आपका एक पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहा है प्रोटॉन के साथ. प्रोटॉन ने फिर एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट किया, फिर वो एनिलेट किया, फिर उन्होंने फोटोन जनरेट किया, एक न्यूट्रॉन भी जनरेट हुआ, न्यूट्रॉन थोड़ा मूव किया, उसमें वो स्लो डाउन हुआ, फिर कैडमियम ने उसे कैप्चर किया, फिर एक गामा फोटोन. सो दैट मींस लाइट एमिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं जब अनचार्ज पार्टिकल आपके मैटर में एंटर करता है. तो उस कैटेगरी में हम क्या करते हैं कि हमें लाइट के डिटेक्शन वाले प्रॉपर्टी को फॉलो करना है. लेकिन चार्ज के केसेस में क्या होता है, जैसे अगर बीटा पार्टिकल है, प्लस है, माइनस है, या अल्फा पार्टिकल है, या प्रोटॉन है, इनके बेसिक इंटरेक्शन क्या है, दे विल आयोनाइज योर मटेरियल. व्हाट दे विल डू, दे विल आयोनाइज योर मटेरियल. आपका जो मटेरियल होगा उसको ये क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा. आयोनाइज करने से क्या बेनिफिट हुआ हमारे पास कि आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम में आपके पास आयंस क्रिएट हो गए, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव. नेगेटिव कौन से, इलेक्ट्रॉन्स है. पॉजिटिव कौन से, हेवी आयंस है. वंस दे आर क्रिएटेड, नाउ व्हाट यू कैन डू, यू वांट टू कलेक्ट देम.
पहला चांस तो ये भी होगा कि दे कैन कंबाइन, ये आपने जो रेडिएशन आपका आया, उन्होंने चार्ज जनरेट किया आपके मीडियम में, और जब मीडियम में चार्ज जनरेट हुआ तो उसको कलेक्ट होने से पहले दे कंबाइन, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। 100 जनरेट हुए, उसमें से 50 बच गए आपके पास। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई रेडिएशन एंटर हो रहा है तो उसको आपको जो भी उसने उसका आउटकम हुआ, आउटकम क्या होगा, आयनाइजेशन होगा आपके मीडियम का। मीडियम के आयनाइजेशन का मीनिंग क्या है कि आयंस हैज बीन क्रिएटेड, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है और पॉजिटिव चार्ज जो आयंस के पास वो रह गया है। नाउ यू वांट टू कलेक्ट देम, अगर आपने इनको कलेक्ट कर लिया बिफोर रिकंबाइनिंग, देन यू कैन जनरेट अ करंट। क्योंकि हमारे पास क्या होगा, हम इसको कलेक्ट करेंगे तो वी विल हैव अ करंट, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विल जनरेट अ करंट। आप किसी टाइम में किसी वायर में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम में, सो दैट इज अ करंट। सो वी कैन हैव अ सिग्नल, यानी जब भी कोई रेडिएशन आएगा तो आपके पास चांसेस होंगे। अब इसमें क्या है कि जब भी आपका मेथड जिस जिस इस तरह के पार्टिकल के लिए आपके पास चार्ज प्रोडक्शन होगा, यानी प्लस माइनस चार्जेस विल बी जनरेटेड एंड यू कैन इजिली कलेक्ट देम। बहुत इजी होता है, मतलब आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना होता है। और आपका एग्जांपल बता देता हूँ, गीगर मुलर काउंटर इज दिस काइंड ऑफ काउंटर, आयनेशन काउंटर इज दिस काइंड ऑफ काउंटर। आयनेशन चैम्बर है, एक प्रोपोर्शनल काउंटर है, गीगर मुलर है। बहुत सारे एग्जांपल हैं जो इन चीजों पे फोकस होते हैं कि चार्ज जनरेट हो गए एंड वी हैव टू कलेक्ट दीज चार्जेस। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, 1000 वोल्ट का लगा दो, 2000 वोल्ट का लगा दो, these charge without recombining they will travel to their respective electrode. So this kind of identification normally done for these particles जिनके पास पहले से ही चार्ज होते हैं, क्योंकि ये उसी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर कोई अनचार्ज पार्टिकल है, जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, दे आर नॉट चार्ज पार्टिकल, देन दे विल नॉट इंटरेक्ट लाइक दिस वन। देयर इज अ वेरी रेयर चांस कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को जनरेट करें, देयर इज अ वेरी रेयर चांस। तो मैक्सिमम टाइम जो आपके अनचार्ज पार्टिकल होते हैं दे इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियस, तो वो फिर थोड़ा सा, या वो नॉर्मली उनका जो आउटकम होता है वो फोटॉन्स होते हैं। तो हमें जो डिटेक्टर बनाना होगा फोटोन पे बेस्ड होना चाहिए। तो पहले केस में हमारे पास क्या है, चार्ज पे बेस है, यानी जब भी हमारा चार्ज जनरेट होगा मटेरियल में तो बेस्ड ऑन दैट, सो दैट इज वन कैटेगरी ऑफ डिटेक्टर। एंड वी कैन यूज गैस, वी कैन यूज लिक्विड, वी कैन यूज सॉलिड, तीनों केसेस में डिटेक्टर बन सकते हैं। बट गैसियस में चार्जेस का मोशन यानी इलेक्ट्रॉन आयन का मोशन इजी है, लिक्विड में भी थोड़ा सा इजी है, बट सॉलिड में इट इज वेरी डिफिकल्ट। सॉलिड में आपके जो आयंस हैं वो अपने लैटिस पे बैठे हुए हैं, दे कैन नॉट मूव, ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव, बट आयंस भी मूव करते हैं। इफ यू नो व्हाट दे आर कॉल्ड, अगर पॉजिटिव आयंस जो मूव करता है उसको क्या कहते हैं, सॉलिड में अगर मूव करता है तो व्हाट दैट प्रोसेस इज, डू यू नो? सॉलिड में अगर आयंस मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमारा नोन है, हमने पढ़ा हुआ है पहले से। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा तो इलेक्ट्रॉन ही है, उसको हम इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं। And the positive charge which is normally due to ion motion, what those charge motion is called? नहीं पता। होल्स, होल्स का मोशन पढ़ा है ना? होल्स, होल्स एक्चुअली उसके सिर्फ आयंस की पोजीशन चेंज होती आती है। आपका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैट, जो पॉजिटिव आपके किसी एटम पे है जो भी चार्ज, दैट start traveling and we infer कि ये whole transfer यानी positive charge is moving, actually those ions are not moving, they are sitting on its own position क्योंकि वो लैटिस में it is not easy to move, वहां से निकल जाएगा तो फिर तो डिफेक्ट आ जाएगा, so that is not possible, only the charge can be shifted and that charge is shifting is called whole transfer। तो आपके सॉलिड में भी पॉसिबल है अगर आप सेमीकंडक्टर पे वर्क कर रहे हो तो, यानी इफ योर सेमीकंडक्टर, इफ यू आर यूजिंग अ डिटेक्टर व्हिच इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, देन इट इज पॉसिबल कि you can have a current due to electron and you can have a current due to holes also and you can get a signal। तो तीनों केसेस में, अगर सॉलिड में हो, गैस में हो, लिक्विड में हो, तीनों केसेस में हमें कलेक्शन करना है इन चार्जेस को जो प्रोड्यूस हुए हैं किसी चार्ज
particle के interaction से. Neutron also produce charges, but that is very rare. It is hardly we will able to see that. Then we have a light sensing, जो कि लाइट को सेंस करता है. जो अभी एग्जांपल मैंने दिया ना कि आपका अगर न्यूट्रॉन कोई न्यूक्लियस कैप्चर करता है तो इट गो इनटू एक्साइटेड स्टेट एंड आफ्टर दैट इट मे एमिट अ गामा फोटोन. तो वी हैव टू मेजर दैट गामा फोटोन कि उसकी एनर्जी क्या है. तो हमारे पास डिटेक्टर जो है वो एक्चुअली लाइट को सेंस कर रहा है, बट लाइट इज बीइंग जनरेटेड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ इनकमिंग पार्टिकल. यानी वी आर मेजरिंग इनडायरेक्टली. ऊपर भी हमारा इनडायरेक्टली ये था, ऊपर भी हमारा कोई डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं था. सो दिस इज समवेयर व्हेन योर रिएक्शन its end product is light, so you can measure that also. That is also possible. Sometime even ऐसा भी होता है कि आपके पास प्रोटॉन है. मैंने शायद जब हम इंटरेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया कि प्रोटॉन डज नॉट ऑलवेज रिमूव डू द आयोनाइजेशन. उसकी कुछ एनर्जी उसमें भी वेस्ट होती है जिसमें कि वो एटम को क्या करता है, सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में डाल देता है और फिर वो एक्साइटेड स्टेट दोबारा से वो ग्राउंड स्टेट में आता है एंड देन इट एमिट अ रेडिएशन. तो दैट इज आल्सो पॉसिबल. तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लाइट सेंसिंग हमेशा न्यूट्रॉन या न्यूट्रिनो के लिए होगा. इट कैन हैपन फॉर अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल आल्सो. दैट इज नॉट अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री कि इसके अलावा ये फॉलो नहीं करेगा, ये इसमें नहीं फॉलो करेगा. तो लाइट सेंसिंग पे बेस्ड हमारा डिटेक्टर होता है. ये भी हमारे सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों फॉर्म में होते हैं. हमारे पास सॉलिड भी है, गैस भी है और लिक्विड भी है. तो तीनों फॉर्म के हमारे एग्जिस्ट करते हैं इन दिस लाइट सेंसिंग. तो हमारा इंटरेक्शन हुआ, लाइट एमिशन हुए, उस लाइट को हमें कलेक्ट करना है एंड वी कैन कन्वर्ट दैट लाइट इनटू द करंट और फिर हम उसको मेजर कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से. थर्ड कैटेगरी इज द विजुअलाइजेशन. हम ट्रैक को विजुअल करते हैं. मतलब कोई पार्टिकल है, नॉर्मली इसमें हमें ट्रैक, हमें इस मेथड से ये पता चलता है कि उसका स्पिन क्या है, वो चार्ज पार्टिकल है या नहीं है. तो वी कैन गेट आइडिया ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग. तो विजुअलाइजेशन आज के टाइम में थोड़ा बंद हो गया है. आज के टाइम में बहुत कॉमन नहीं हो गया है बिकॉज इन सारे कैटेगरी को बड़े ही एक एफिशिएंट डिटेक्टर ने रिप्लेस कर दिया है. बिकॉज if you see a scintillator, that scintillator will be something like size will be 6 to 5 computers. तो अगर सीपीयू आपके पास है तो सीपीयू के 4-5 आप सीपीयू रख दो तो उतना बड़ा आपका, उससे हो सकता है बड़ा ही हो. अगर लिक्विड सेंटिलेटर आप यूज करो तो दैट चैम्बर वुड बी वेरी बिग. And even when you're using a gas detector, so that is also having at least a size of 10-20 centimeter kind of thing. What kind of particle you're detecting, तो size आपके थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उसको हैंडलिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. बट नाउ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में, दैट मीन्स पीएन जंक्शन. तो पीएन जंक्शन ने क्या किया, सबको रिप्लेस कर दिया है. तो पीएन जंक्शन का साइज बहुत छोटा होता है और उसके जो बैंड एरिया है वो हमें यूटिलाइज करना होता है. वो साइज बहुत है, वो माइक्रो या बहुत से बहुत आप बढ़ा करके उसे फ्रैक्शन ऑफ मिली रेंज में ला सकते हो. बिकॉज दिस साइज इज क्वाइट, जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा आपका डिटेक्शन के चांसेस अच्छे होंगे, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट. तो मोस्ट ऑफ द थिंग आज के टाइम में लोग सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को यूज करते हैं, जो कि अब इसलिए पॉसिबल है बिकॉज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, they are more easily being purified at lower cost. पहले इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती थी. सिलिकॉन निकालने का क्या तरीका, सिलिकॉन का और क्या है, हमारे अर्थ पे सिलिकॉन का और पता है क्या है, व्हाट इज द ओर ऑफ सिलिकॉन, कहाँ से हम सिलिकॉन लेते हैं या कहाँ से मिलता है हमें, डू यू नो? सर सिलिका और रेत से. हाँ, तो सिलिका क्या है, कहाँ से है, सिलिका क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सिलिका कहाँ पे मिलते हैं? Sand could be used. Can we use sand? Yes, sir. पहले तो सैंड से करते थे. सैंड की प्यूरिफिकेशन इट इज वेरी टफ. उस सैंड को मेल्ट करके उसमें से प्यूरिफाई करके टू टेक आउट ओनली सिलिकॉन
एंड जर्मेनियम इज मोर टफर, इसलिए जर्मेनियम कॉस्टली पड़ता है, एटलीस्ट 1000 टाइम शायद कॉस्टली होता है। सिलिकॉन का अगर क्रिस्टल खरीदोगे तो 1 मिलीमीटर थिकनेस और 1 by 1 सेंटीमीटर का अगर आप लेते हो तो दैट विल कॉस्ट, मतलब वेफर जो होता है सिलिकॉन का वो तो 1 इंच के एक सर्कल में आता है, डिस्क के फॉर्म में आता है, एंड दैट इज रफली ऑफ द कॉस्ट ऑफ अराउंड, आज से 10 साल पहले का मैं रेट बता रहा हूँ, 5000 या समथिंग था। हमें तो फ्री में मिल गया था कहीं से ड्यूरिंग रिसर्च, बट दैट वाज अराउंड 5000 रुपीज। आज से करीबन 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सिलिकॉन का वो भी बहुत प्योर नहीं था, that was not a very big crystalline kind of material, but it was a good shining disc kind of thing, but that is so costly। और उस पे हम फिर फैब्रिकेशन करते हैं अपने सारे डिवाइसेस का, तो हमेशा वो डिस्क के फॉर्म में आता है और फिर उसके ऊपर आप अपने थिकनेस के अकॉर्डिंग आपने अपने पीएन जंक्शन या कोई डायोड या ट्रांजिस्टर उस पर डिजाइन करते हो। तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है इसकी, बट आज के टाइम में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है और कॉस्टिंग हैज डिक्रीज। सो कॉस्टिंग डिक्रीज होने से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो सिलिकॉन के जगह जर्मेनियम यूज होते हैं, बट जर्मेनियम में एक प्रॉब्लम है, जर्मेनियम डज नॉट गिव गुड रिजल्ट एट रूम टेम्परेचर, दे कैन गिव रिजल्ट एट लोअर टेम्परेचर। तो हमें सारे जो डिटेक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट, उसे हमें लिक्विड नाइट्रोजन या उससे भी नीचे टेम्परेचर पे हमें उसे रखना होता है, देन इट गिव अ गुड रिजल्ट। तो क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है, जर्मेनियम इज नॉट सो स्टेबल एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। आप जितना भी लैब में यूज कर रहे हो, जो भी डायोड यूज करते हो, दे ऑल आर मेड ऑफ सिलिकॉन। You don't find the germanium made PN junction. It is not easy to find. आपके पास शायद अपने 4 प्रोब अब करना शुरू किया होगा, सॉलिड स्टेट में एक 4 प्रोब एक्सपेरिमेंट होता है, वहां पे हम जर्मेनियम क्रिस्टल मंगाते हैं, बट दैट इज अ पॉलीक्रिस्टल, दैट इज नॉट अ सिंगल क्रिस्टल, इट इज अ पॉलीक्रिस्टल। तो आप अगर 4 प्रोब का apparatus अगर खोल के देखो तो उसमें बहुत थिन सा एक ब्लैक कलर का, दिखने में ब्लैक लगेगा, शाइनी सा एक सेमीकंडक्टर होगा, दैट इज अ जर्मेनियम। तो हम क्लास में बच्चों को जर्मेनियम क्रिस्टल के बैंड गैप निकालते हैं जो 0.3 समथिंग आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट उसमें भी कई बार हम सिलिकॉन यूज कर लेते हैं बिकॉज जर्मेनियम मिलना मुश्किल होता है। बट अब थोड़ी सी उनकी इजी होगी एक्सेसिबल एंड पीपल गेट दैट, तो मैक्सिमम डिटेक्टर एंड दे आर वेरी लाइट। आपका पीएन जंक्शन का साइज ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा होता है। एक स्मॉलेस्ट पीएन जंक्शन का साइज अगर आप बनाओगे तो हार्डली इट विल बी ऑफ अ माइक्रो में आप जाके बना सकते हो। अब तो ट्रांजिस्टर भी नैनो के आ गए, नैनो डायमेंशन के ट्रांजिस्टर्स आ चुके हैं, हैविंग हार्डली 7 to 8 एटम्स एंड दे कैन बिकम अ ट्रांजिस्टर। तो वो तो अभी खैर यूज नहीं होते हैं, बट एटलीस्ट आपके मिलीमीटर या फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर के साइज के आपके ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मिल जाते हैं। वी कैन इजिली प्यूरिफाई एंड वी गेट द थिंग्स एंड वी कैन इजिली मेक। तो अब थोड़ा सा ये जो विजुअलाइजेशन वाला है ना, ये वाला जो थर्ड वाला है, इसको थोड़ा सा हमने रिप्लेस कर दिया। मैं जस्ट एक पिक्चर दिखाऊंगा आपको कि विजुअलाइजेशन डायरेक्टर्स होते क्या है, और आपने कई बार देखा हुआ है, बट यू डोंट नो कि ये सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आपने कई बार देखा होगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी मैं बताऊंगा, उसे घर जाके घर पे कर सकते, घर जाके क्या घर पे ही हो तो उसे कर सकते हो। तो जस्ट वेट फॉर, एक हमारा टॉपिक मिस हो गया, मैं एक टॉपिक जो श्रिंक ऑफ रेडिएशन, वो हमने नहीं किया, वो पिछले यूनिट का था, तो उसे भी हम कर लेंगे। उसे किसी, वो बिल्कुल पहले से कुछ रिलेटेड नहीं है, तो उसे हम किसी एक सैटरडे कर लेंगे उसे, ठीक है। आज हम डिटेक्टर पे करेंगे फोकस। तो जस्ट एक बार वेट करो, 2 मिनट के लिए वेट करो। मैं एक बार अपने दूसरे फोन में एक लेक्चर ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको मैं विजुअलाइजेशन ट्रैक और थोड़े से डिटेक्टर के पिक्चर्स आपको शो करता हूँ, व्हाट दीज डिटेक्टर्स आर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दीज डिटेक्टर्स। जस्ट होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स।
Okay, so there is a FDP going on, and we are organizing a FDP, and that is based on the material characterization. But उसमें बस restriction ये है कि faculty और research scholar join कर सकते हैं. Otherwise, I love to कि भी third year, second year, first year के बच्चे join करें, and they should understand how we characterize a material after making that. कोई material आप produce करते हो, तो उसे हम characterize कैसे करते हैं कि हमने जो बनाया है वो सही बनाया कि नहीं. जैसे example के लिए आप इमेजिन करो आपको शुगर केन मिलता है और शुगर केन से समवन आस्क यू भाई आप उसको से शुगर बना लो, शुगर के क्रिस्टल बनाओ, और आपने उसको स्क्वीज किया, उसमें से जूस निकाला उसका, फिर उसको बॉईल किया, बॉईल करके आप धीरे धीरे उसे रोटेट कर रहे हो और बाद में आपके कुछ क्रिस्टल पार्टिकल आपको मिल गए. मोस्टली आपको ब्लैक मिलेंगे क्योंकि आपका जल जाएगा क्योंकि हीट जो करोगे ज्यादा कर दोगे तो इट विल बर्न ऑफ. एंड हाउ वी विल जज? वी विल जज बाय टेस्टिंग इट. तो हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं. ऐसे कोई पॉइजनस नहीं होगा, उसमें से कुछ अल्कोहल पार्ट भी आएगा, वो भी आपको मिलेगा जब शुगर को मूव करते हैं. बिल्कुल उसको एक तरीके से हमें बॉईल करना होता है. उसमें से जो वाटर कंटेंट है ना, वी हैव टू रिमूव दैट, देन इट विल क्रिस्टलाइज. तो वो क्रिस्टलाइज होता है, फिर उसको टेस्ट करके चेक करेगा, यस यस इट इज स्वीट एंड इट इज अ शुगर. इन द सेम सेंस व्हेन वी मेक सर्टेन मटेरियल, जैसे आपने आपने NaCl बना लिया, आपने सोल्ट बना लिया, नाउ यू वांट टू चेक कि भी ये सोल्ट है या नहीं है. एक ही तरीका है टेस्ट कर. लेकिन टेस्ट करने से दैट कुड बी डिस्ट्रक्टिव. इफ यू टेस्ट समथिंग एल्स तो हो सकता है आपको कुछ और भी हो सकता है. सो व्हाट वी हैव डिफरेंट थिंग्स. हम उसको एक्सरे एनालिसिस कर सकते हैं, हम उसको किसी स्पेक्ट्रोस्कोप में डाल करके उस पर लाइट का एमिशन करें, और फिर लाइट को कौन सा ऑब्जर्व करेगा, कौन सा एमिट करेगा. तो वी कैन हैव दोस काइंड ऑफ कैरेक्टराइजेशन. तो इसमें हम सारा कुछ वो करवा रहे हैं, 5 दिन का है, तो वो भी चल रहा है. बट आप लोग नहीं जान कर सकते, बस दिक्कत ये है. तो आई जस्ट शेयर कि बबल चैम्बर मींस विजुअलाइजेशन ट्रैक होते क्या है. एंड प्रीवियसली ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट अभी जितना पढ़ेंगे बस उतना ही. आपको डिटेल में इसकी थ्योरी नहीं पढ़नी है कि व्हाट इज बबल और बबल चैम्बर और विजुअलाइजेशन चैम्बर होते क्या है. तो पहले लोग यूज करते थे, एंड दे आर वेरी बिग टैंक्स. लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ दैट एंड व्हाट द रिजल्ट वी गेट. I will share the screen. Okay, so this is one kind of a bubble chamber, and you can see the size of this bubble chamber. इसको पॉकेट में लेके तो नहीं घूम सकते हो, है ना. अगर कहीं रेडिएशन लीक हो जाए एंड समवन आस्क यू कि ये रेडिएशन पता करो, you won't offer कि मैं बबल चैम्बर लेके आ जाऊंगा because it is constructed on a very concrete base. It is not easy because this whole box or this circle or sphere, you can say, that is filled with liquid, and those liquid are superheated. Superheated liquid means they are just about to convert into vapor within very small amount of energy. सुपरहीटेड का मीनिंग जो हम प्रैक्टिकली हम वर्ड सुनते हैं कि सुपरहीटेड क्या होता है. सुपरहीटेड और सुपरहीटेड लिक्विड में कह रहा हूँ, सुपरहीटेड गैस नहीं कह रहा हूँ. सुपरहीटेड लिक्विड का मीनिंग है इवन इफ यू टच दैट लिक्विड, मतलब एक टेम्परेचर तो है ही ज्यादा, बट इफ यू टच दैट देयर विल बी डिस्टर्बेंस, ड्रास्टिक डिस्टर्बेंस विल बी देयर. तो आपने करना क्या होता है, इस चैम्बर में आप कोई लिक्विड फिल करते हो, दैट लिक्विड विल बी मींस इट हैज सर्टेन प्रॉपर्टी कि ये चीजें आपको चेक करनी है, और उसमें पार्टिकल एंटर करते हैं, और पार्टिकल के पास दे हैव काइनेटिक एनर्जी, दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. इवन दो दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, स्टिल दे कैन डिस्टर्ब द ट्रेजेक्टरी. जिस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा ना कोई पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन एंटर कर रहा है, वो जो भी ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करेगा, यानी जिस पाथ को फॉलो करेगा प्रोटॉन या कोई भी आपका पार्टिकल जो एंटर हो रहा है इस बबल चैम्बर में, it will leave a trail of disturbance along its path.
और आपके पास कैमरे लगे होते हैं, उस कैमरे से आप उसका चेक कर लेते हो। उसी जब वो आपने पार्टिकल एंटर किया, आप ऑन कर देते हो, मतलब कैमरे ऑन करते हो, और कैमरा गोज ऑन फ्लैशिंग एंड टेकिंग द पिक्चर ऑफ दैट। तो यू गेट द आइडिया कि भी वो पार्टिकल किस पाथ को उसने फॉलो किया, और ट्रैक हमारा कैप्चर हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जिसका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जैसे ये बना, ये ब्लू पिक्चर, these are actually the trajectory of different particles। ये ट्रेजेक्ट्री है और किसी एक पॉइंट से एंटर हो रहा है, और ये ट्रेजेक्ट्री फॉर्मेशन है। और बबल चैम्बर में नॉर्मली वी हैव मैग्नेटिक फील्ड। तो जितने भी आपको सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं, दे ऑल आर सम काइंड ऑफ यू कैन से अ चार्ज पार्टिकल। चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, उसकी ट्रेजेक्ट्री डिसाइड करेगी कि वो क्लासिकल, वो सॉरी क्लॉकवाइज में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में घूम। तो जितने भी आपको सर्कुलर पिक्चर दिख रहे हैं ना यहाँ पे, वो सारे चार्ज पार्टिकल है। और जो आपके स्ट्रेट फॉलो कर रहे हैं, दे आर अनचार्ज पार्टिकल। यू कैन इजिली प्रेडिक्ट, ये तो हम इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई जो शावर ऑफ पार्टिकल आ रहे हैं उसमें हमारे पास चार्ज भी है और अनचार्ज भी है। तो ये जैसे ये एग्जांपल है बबल चैम्बर का, ये इसमें भी आपके बहुत यहाँ पे मार्क भी कर रखा है, वी हैव टू चेक व्हाट इज दिस पार्टिकल इज, या उसने कुछ क्रॉस लगा रखे हैं, ये है क्या, समथिंग दे वांट टू इंक्वायर कि क्या है। तो यू कैन सी दिस, ये आपका बबल में एंटर हुआ कोई पार्टिकल एंड स्टार्ट मेकिंग अ कर्वेचर। कर्वेचर क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में यू नो जब भी कोई पार्टिकल आएगा, इट विल हैव अ सर्कुलर पाथ, and anything which is moving straight, that means it is not a charge particle। और कितना डिस्टेंस तक मूव कर रहा है, कितनी इंटेंसिटी से आ रहा है, यू कैन जज यूजिंग दीज पिक्चर्स। अब आपको ये देखना है कि ये मैं रियली मैं देखूं कहाँ पे। अगर मुझे चेक करना है कि बबल चैम्बर वर्क कैसे करता है, तो यू कैन गो होम नहीं, यू आर एट द होम। बार बार मैं गो होम, क्योंकि हम पढ़ाते हैं गो होम के हिसाब से, तुम्हारे पास एक दिमाग में बैठ रहा था गो होम गो, बट यू आर एट होम। तो माइक्रोवेव में भी सबके पास होगा। हाथ जलाना नहीं है आपको, ऐसा कुछ नहीं करना है कि कुछ खराब, घर का सामान खराब हो। गैस पे गर्म करोगे तो यू विल गेट टू द बॉइलिंग, आपको सुपर हीटेड सिस्टम नहीं मिलेगा, आप बॉइलिंग वाले उस पर चले जाओगे, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोवेव है, तो व्हाट यू कैन डू, अगर आपने माइक्रोवेव में कभी भी कॉफी बनाया हो या कुछ भी पानी भी गर्म किया हो, तो आप एक, आप जैसे आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास है और उसमें आपने आधा गिलास पानी ले लिया और आप उसे चेक कर रहे हो, क्योंकि हमेशा स्टार्ट रेगुलर अगर यूज कर रहे हो माइक्रोवेव, तब तो आप नहीं देखते हो कि कब वो बॉयल होना शुरू हो रहा है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करो तो यू विल ऑलवेज लुक कि भाई इंक्वायर करोगे कब ये बॉयल होना शुरू होता है। तो यू हैव टू स्टॉप एट द पॉइंट व्हेन द बबल स्टार्ट अपीयरिंग। आपको क्या करना है कि आपने माइक्रोवेव ऑन किया और बबल नीचे से आपके धीरे धीरे बनने शुरू होते हैं और बबल इट गोज टू द टॉप। तो उस टाइम पे आपको स्टॉप हो जाना है, आपको माइक्रोवेव को बंद कर देना है। आपने पानी लिया ग्लास में, माइक्रोवेव ऑन किया है, यू आर वेटिंग कि व्हेन द बॉइलिंग विल स्टार्ट, वंस द बॉइलिंग स्टार्ट अपीयरिंग यू हैव टू स्टॉप। और फिर क्या करो, 10 सेकंड 20 सेकंड रुकने के बाद फिर से उसको ऑन करो और फिर से उसको बॉइलिंग के लिए स्टॉप कर दो। यू डू दिस फॉर 2-3 टाइम्स सो दैट योर लिक्विड इज सुपर हीटेड। एग्जैक्टली सुपर हीटेड नहीं होगा, लेकिन सुपर हीटेड जैसा इफेक्ट आपको शो करेगा। अब उसको बड़े ध्यान से, उसको बिना ग्लास को हिलाए हुए, यू जस्ट, क्योंकि ग्लास में क्या होगा कि लिक्विड तक के ग्लास का टेम्परेचर डिफरेंट है और ऊपर का ग्लास है उसका टेम्परेचर डिफरेंट है। तो आपको हिलाना नहीं है, हिलाओगे तो इट विल कम आउट विगरसली, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। कई बार लोगों का फेस भी बर्न हो गया है, तो थोड़ा ध्यान से उसको ध्यान से उठा करके बाहर लाओ और जस्ट पुट शुगर इन दैट, उसमें 1 चम्मच शुगर डालो। शुगर का पार्टिकल जैसे ही वाटर पे फॉल करेगा, द वाटर विल टेक द हाइट एट लीस्ट हाफ ऑफ इट्स एक्चुअल हाइट, यानी आधा गिलास है ना, तो वो करीबन 3/4 तक फिल हो जाएगा वाटर। सडनली वो बबल बिल्कुल ऊपर आएंगे। आपको, आप बॉइलिंग नहीं कर रहे हो, अब आपने उसको हीट देना बंद कर दिया, बट स्टिल when the particle enters the system is so disturbed, system is having such a energy कि small motion भी उसके evaporization को एक्टिवेट कर देगा। यानी सुपरहीटेड मींस, सुपरहीटेड लिक्विड का मीनिंग क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इफ यू गिव इट विल कन्वर्ट इनटू अ वेपर। तो ऊपर का जो सरफेस है ना, बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा, इट विल बॉयल अप, इट विल फिल द ग्लास। तो आप चेक करना
और अगर आपके पास मिल्क हुआ तो मिल्क तो बाहर आ जाएगा, ये तो श्योर है। तो अगर बिल्कुल मिल्क को तो खैर वाटर तो कभी बॉयल होकर के बाहर नहीं आता है, बट मिल्क के साथ करोगे ना तो यू विल गेट अ बेटर इफेक्ट। पानी के साथ उतना मजा नहीं आता है, आप पानी क्योंकि इट इज नॉट बॉइलिंग एंड इट इज कमिंग आउट, बट मिल्क विल फॉल डाउन फ्रॉम योर ग्लास, वो बाहर आ जाएगा, आधा भी होगा ना। और अगर आपने बिल्कुल 2-3 बार उसको सुपर हीटेड पे ला करके छोड़ दिया है तो हल्का सा आप चीनी डालो, इट विल कम आउट बिकॉज इट विल बॉयल विगरसली। तो ध्यान से करना अगर करना चाहते हो। इवन इफ यू डोंट हैव अ माइक्रोवेव, यू कैन डू इन द गैस। गैस पे आप स्टोव पे रखो बर्तन, उसमें पानी करो गर्म और बॉइलिंग तक लाओ उसको। जब बॉइलिंग बबलिंग स्टार्ट हो जाए उसको छोड़ दो। अब उस वाटर में आप क्या करो, स्पून लो, स्पून को ऐसे रोटेट करो, हल्का सा पानी में ऐसे डालो और स्पून को रोटेट करो, तो स्पून के पाथ के अलोंग यू विल सी द बबल्स, दे आर फॉर्म्ड। तो बबल का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इतना हाई वैल्यू की एनर्जी पे रख दिया है इसको, वाटर को, कि if I provide a very small amount of kinetic energy also to these particles, they will just evaporate. वो वेट कर रहे हैं evaporate होने के लिए, बस उनको एक किक चाहिए, तो वो किक हमारा स्पून दे देगा उसे। So this is what is being done in the bubble chamber. तो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं ना वो बहुत ही लाइट पार्टिकल है, अगर एक सिंगल प्रोटॉन है तो सिंगल प्रोटॉन है, तो इट इज नॉट गोइंग टू डू मच विद द वाटर मॉलिक्यूल, उसको उतना ज्यादा मोशन नहीं देगा। लेकिन हाँ, जब भी वो मूव करेगा तो a little bit energy will be gained by the water molecule and they can evaporate and this evaporation is done। यही हमारा बबल चैम्बर कैप्चर करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने रियली देखा कहाँ है ये सिस्टम। आपने एरोप्लेन्स ऊपर कभी इन दिस स्काई, इफ सम टेस्टिंग प्लेन इज देयर और वो एक ट्रेल छोड़ता हुआ चला जाता है, कई बार सभी बच्चों ने कभी ना, ये मत कहना कि नहीं देखा, कभी ना कभी देखा होगा आपने, कि उसके पीछे एक ट्रैक बना होता है और उसमें आपको ऐसा लगे कि देयर इज अ क्लाउड इज फॉर्म्ड बिहाइंड द एरोप्लेन। देखा होगा आपने, कभी ना कभी तो देखा होगा, या नहीं देखा कभी? कोई भी जेट है जो जेट इंजन यूज कर रहा है तो वो एग्जॉस्ट गैस अपना जो हीटेड गैस एमिट करता है ना, और जब वो ऊपर बहुत ही मतलब वो नॉर्मल प्लेन से ज्यादा हाई, मतलब टेस्टिंग प्लेन्स होते हैं वो उससे ज्यादा हाइट पे होते हैं, तो वो जहाँ जिस हाइट पे वहाँ पे जो क्लाउड है, दे आर मे बी, मुझे नहीं पता कि आपने कितने में देखा हो या नहीं देखा हो, बट ट्रैक हमेशा दिखेगा आपको, नॉर्मल एरोप्लेन का नहीं दिखेगा। दे आर एट लो हाइट, बट ज्यादा हाइट पे क्लाउड बहुत डिस्टर्ब होता है, तो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, वहां पे क्या हो रहा है, आपका जो क्लाउड एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो द ट्रैक इज नथिंग बट इट इज अ बबल चैम्बर इफेक्ट। सेम इफेक्ट दिखता है आपको वहां पे भी। तो ट्रैक आपको इजीली विजिबल होता है, वो विजिबल इसलिए है क्योंकि जिस एयरप्लेन, जब आपका जो प्लेन मूव कर रहा है, जब वो एग्जॉस्ट एमिशन कर रहा है वो हीटेड है, तो उसने उस एरिया के अराउंड, उस एग्जॉस्ट एरिया के अराउंड उसने क्या किया है, सारे जो आपके गैस पार्टिकल या वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में आपके या उस हाइट पे एयर में है, दे बिकम वेपर, तो वो व्हाइट व्हाइट से दिखने लगता है। और ट्रैक भी नजर आएंगे आपको, 2 इंजन होंगे तो 2 ट्रैक नजर आएंगे, 4 इंजन होंगे तो 4 ट्रैक नजर आएंगे। तो इट विल रिमेन फॉर सर्टेन टाइम एंड देन इट विल डिस्पर्स, फिर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो हमें उसी टाइम पे कैप्चर करना जब वो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर क्वाइट ओल्ड काइंड ऑफ डिटेक्शन। अब लोगों ने सॉलिड स्टेट और सेंटिलेटर और गीगर मोलर काउंटर जो कि बड़े कॉम्पैक्ट आ गए हैं, यू कैन जो टिफिन बॉक्स होता है, टिफिन बॉक्स के साइज का आजकल डिटेक्टर हो जाता है। तो if somewhere radiation leaks, you someone come and he will carry that small box एंड उसमें फिर साउंड आता रहता है, अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा है तो टक 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 मींस क्लिकिंग साउंड आती रहेगी। तो इट कैन काउंट कि 1 सेकंड में कितने क्लिक हुए, तो इट कैन गिव यू कि देयर आर अराउंड 30 गामा पार्टिकल इन 1 सेकंड, सो द रेडिएशन इंटेंसिटी इज वेरी हाई इफ योर क्लिक इज वेरी स्लो। तो अब इतने कॉम्पैक्ट और कंसाइज साइज के आ गए ना कि बबल चैम्बर को लोगों ने पुराने टाइम का सिस्टम समझ लिया। बबल चैम्बर में एक और बड़ा, बबल चैम्बर का जो नोबेल प्राइज का एक वर्क था स्टार्टिंग में, सी आई विल शो यू दिस पर्टिकुलर कर्व। इसमें कर्व मैं आपको दिखाता हूँ जो न्यू काइंड ऑफ पार्टिकल को जिसने डिटेक्ट किया, दैट इज पॉसिबल इन द बबल चैम्बर। इफ आई कुड ओपन द पिक्चर, यस। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इस पिक्चर में मैक्सिमम ट्रैक, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड दे आर गोइंग देयर, कुछ तो स्ट्रेट चले गए और कुछ आपके रोटेट हो गए। तो मोरलेस इफ यू काउंट देम कि 1 2 3 4 5 6 बैठ करके, क्योंकि ये हम नहीं काउंट कर पा रहे हैं, बट जिनके पास पिक्चर है उसको एनलार्ज करके दे सिट डाउन एंड डू द थिंग्स की काउंटिंग करते हैं कितने पार्टिकल्स थे, तो दे कैन काउंट दीज
लाइंस, तो काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे भी वो काउंट कर रहे हैं, बट सडनली व्हाट दे फाउंड कि यहाँ पे लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, जितने एंटर हुए हैं उससे ज्यादा यहाँ पे मिल रही है। वो कहाँ पे आ रही है, मतलब फ्रॉम द वेयर दे आर कमिंग, इफ दे आर नॉट एंटरिंग हियर देन व्हाई दे आर कमिंग हियर। तो लुक एट दिस लाइन, आई विल जस्ट मार्क, ये दिख रहा है आपको, दिस वन, वी शेप, आर यू एबल टू सी दिस? Yes, sir. This V shape is not coming from here. वो पार्टिकल यहाँ से आपको नजर ही नहीं आएगा, उसका कोई ट्रैक नहीं है, सडनली इट अपीयर्स। These are strange particles that was also present at this time। ये वो यहाँ पे था, बट उसका इंटरेक्शन किसी पार्टिकल से हो ही नहीं रहा है। इट डज नॉट इंटरेक्ट विथ एनीथिंग, इट जस्ट अपीयर। आपको अब उसके बाद क्या हुआ, जब स्ट्रेंज पार्टिकल डिके हो गया किसी नॉर्मल पार्टिकल में, देन इट विल हैव अ इंटरेक्शन एंड यू कैन सी द ट्रैक। ट्रैक से पहले क्या था, यू डोंट एबल टू फाइंड, बट इट वाज देयर बिकॉज, एंड दीज पार्टिकल जो वी शेप फॉर्म करते हैं वो ज्यादातर आपके स्ट्रेंज क्वार्क से रिलेटेड होते हैं। तो जिस पार्टिकल का कॉम्पोजिशन स्ट्रेंज क्वार्क होगा, दे विल फॉलो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। वो पहले से प्रेजेंट है बट हमें दिखेगा ही नहीं वो, क्योंकि इट इज हार्डली गोइंग टू हैव इंटरेक्शन, वो स्ट्रेंज क्वार्क है। And in the same sense, when they have a different kind of generation of these particle, जो normally usually जो हैं जो बिल्कुल unique kind of picture अपना trail show करते हैं, so they are either bottom particle or top particle or strange particle like that, जिनके अंदर इस तरह के क्वार्क होंगे। बाकी तो हमारे अप एंड डाउन क्वार्क तो मैक्सिमम सभी पार्टिकल्स में है ही, जो हमारे नॉर्मल जो जिससे हम बने हुए हैं। तो वी आर मेड अप ऑफ अप एंड डाउन क्वार्क एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास तीन ही पार्टिकल है। हमारा सारा जो न्यूक्लियर सिस्टम जो बना हुआ है, दे आर मेड अप ऑफ अप एंड डाउन, एंड द एटम इज मेड अप विद दीज टू, द न्यूक्लियस इज फॉर्म एंड वी हैव एटम्स व्हिच हैविंग इलेक्ट्रॉन आल्सो। तो हम तीन ही चीजों से बने हुए हैं, वी डोंट हैव स्ट्रेंज क्वार्क और टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क। सो दे आर fancy names and fancy particles and they behave in a fancy way. So now let us go in a formal way that one by one, बिकॉज हमें जो पढ़ना है, हमें गीगर मूलर काउंटर पढ़ना है, आयोनाइजेशन चैम्बर पढ़ना है, और हमें सिंटिलेटेड डिटेक्टर पढ़ना है, सॉलिड स्टेट, ये चार डिटेक्टर हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। फर्स्ट वी विल गो विद द गैस डिटेक्टर्स। तो क्योंकि प्रोपोर्शनल काउंटर और आपका जो जीएम काउंटर है, दे आर एक्चुअली द गैस डिटेक्टर्स। उसका जो मेन कंपोजिशन है गैस है। लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द गैस डिटेक्टर एंड व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ गैस डिटेक्टर, कि उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वर्किंग वो क्या है, और कैसे हम डिडक्शन करते हैं किसी भी पार्टिकल का, उसकी हम एनर्जी निकाल सकते हैं या उसका कोई और पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। मोस्टली जो गैस डिटेक्टर है, दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। जो इनकमिंग पार्टिकल है उसके एनर्जी को कैलकुलेट करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताता है वो, बस इतना ही बताता है वो। तो लेट अस बैक टू द वर्ड फाइल एंड आई विल draw the picture of the ionization chamber, and that will be extended to the proportional and Geiger Muller counter. श्रिंक ऑफ रेडिएशन हम करेंगे सैटरडे को, एंड सैटरडे को दो बच्चों का, मेरे ख्याल से नंद किशोर एंड वन मोर स्टूडेंट अनन्या, नेक्स्ट roll number is Ananya. They have to give the 5 minutes or maybe 10 minutes, something like a presentation on accelerator facilities which are available in India, and they can discuss about the abroad also, कि abroad में बाहर में क्या है, बाहर तो बहुत सारे हैं, but they can distinct some distinct जो हमारे हैं, जैसे फर्मी का है, फिर CERN का है, तो इन लैब्स करते हैं what is the energy scale they have, what is the what kind of energy scale and what kind of particle they can use, वो थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, बट मोस्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंडियन फैसिलिटीज, कि हमारे पास आयुका में क्या रखा हुआ है, या जो इंदौर में कंसोर्टियम है यूजीसी का, उसके पास क्या क्या फैसिलिटी है, या बार्क में क्या है हमारे पास, तो थोड़े से जो इंडिया में अवेलेबल है, दे हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। तो दो बच्चे हैं मेरे ख्याल से, फर्स्ट रोल नंबर इज नंद किशोर एंड अनन्या,
and tomorrow I will share the roll number also. तो मैंने अक्टूबर तक का प्लान बना ली है, तो मैं बच्चों को भेज दूंगा उसी ग्रुप में, तो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट. Okay, so the first kind of detector, which is ionization chamber. That is same what we have discussed about the interaction of radiation with matter. The first thing, that is heavy charge particle, how they interact. They interact through ionization. वो atoms को क्या करते हैं? Ionize करते हैं. तो अपनी एनर्जी जो डंप कर रहा है वो आयनाइजेशन के फॉर्म में डंप कर रहा है. मींस एक्चुअली द एटम्स ऑफ द whatever the material you have used, they get ionized. Not all, but some of them get ionized. So what could be the basic circuit diagram? क्योंकि हमें तो करंट के फॉर्म में डिस्कस करना है. It means the chamber is like a parallel plate capacitor. Chamber कोई अलग सी चीज नहीं है. It is simply you have a dielectric. बीच में जो dielectric है, that is a gas medium. तो gas medium में आपने क्या किया है? दो प्लेट्स आपने डाल दिए हैं. And there is a window. एक तरफ से ओपनिंग होगी जिससे आपका रेडिएशन एंटर करेगा. बाकी पूरा आपका मटेरियल है विच इज फिल्ड विद गैस. आपने इसमें गैस से फिल कर दिया. एंड टू प्लेट्स आर देयर एंड दीज प्लेट्स आर हैविंग अ पोटेंशियल. सो देयर इज मींस देयर विल बी अ रीडिंग वैल्यू. आपका डिजिटल भी हो सकता है या एनालॉग भी हो सकता है रीडिंग, बोथ पॉसिबिलिटी. एंड यू पुट अ हाई टेंशन बैटरी. हाई टेंशन बैटरी मींस एटलीस्ट 100 of किलो, 200 300 किलो तक आपने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है. एंड देयर इज अ मीटर. तो जब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा, वी डोंट हैव एनी करंट थ्रू दिस वन. क्योंकि ये डीसी है. अगर एसी होता तो करंट हमें मिल जाता है यहाँ पे, बट ये डीसी है, तो डीसी तो तभी कंडक्ट करेगा जब इसके बीच में कहीं हमारा डिस्चार्ज होगा. यानी देयर विल बी अ formation of charge between this, and if the charge travel to these electrode, we will get certain signal. तो एक सिंपल सर्किट है. वैसे तो इतना सिंपल नहीं होता. वी हैव आरसी आल्सो, और उनमें टाइम कांस्टेंट भी मैटर करता है कि कितना टाइम ये लेगा यहाँ से यहाँ रीच करने में, या ये कितना टाइम है. ऑल द स्मॉल means the small principle which is involved with the circuitry there, but उतना हम डिस्कस नहीं करेंगे. हम बेसिक पॉइंट को डिस्कस करेंगे. that there is a some kind of arrangement we have to make so that we can collect the charges. So what happens that a radiation enters in this one. रेडिएशन एंटर किया और जिस जो भी उसका ट्रैक है, along the track it will make positive and negative ions. बाकी को नहीं छोड़ेगा. जहां जहां उसके ट्रैक थे उस ट्रैक के along, और मोस्टली वो गैस है तो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा. इट विल मेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. ठीक है. अभी ये गैस में ही बना है. मींस दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैन रिकॉम्बाइन. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. आपने यहाँ पे जो पोटेंशियल आपने अटैच किया उसकी वैल्यू क्या है, दैट वैल्यू विल डिसाइड कि रिकॉम्बिनेशन कितने चांसेस है. बट रिकॉम्बिनेशन इज ऑलवेज देयर. तो पार्टिकल एंटर्स आपका मे बी लेट अस से अल्फा पार्टिकल दैट इज हैविंग सर्टेन एनर्जी, से E is the energy of the alpha particle, and it enters into the chamber, and in chamber is filled with gas, and that gas get ionized for the certain atom. तो कुछ एटम आपके आयनाइज हो गए. अब जब आयनाइज हो गए तो ये पार्टिकल की एनर्जी आपकी लूज हो गई, बिकॉज दिस पार्टिकल हैज टू लूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन. ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू लूज ऑल इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन. दिस इज वेरी रेयर. तो एक प्रेडिक्शन कर सकते हो कि इतनी एनर्जी के, या आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर सकते हो कि आपने पहले से उसे किसी नोन अल्फा पार्टिकल के साथ कैलिब्रेट कर लिया कि भाई इतने वैल्यू का अल्फा पार्टिकल होगा तो मुझे ये इंटेंसिटी मिलेगी करंट की यहाँ पे, यानी करंट का वैल्यू ये मिलेगा. मींस यू कैन ऑलवेज डू अ कैलिब्रेशन. और कैलिब्रेशन आके इसका वीक भी हो जाता है, फिर उसको इंप्रूव करना होता है. तो व्हाट विल हैपन, दिस पोटेंशियल इज, दिस इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल, सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग. अगर आपने पोटेंशियल गुड इनफ लगाया है यहाँ पे, तो दे ऑल विल ट्राई टू move towards this electrode, and all these positive will start moving towards the negative electrode, that is this one.
तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, आपके जो नेगेटिव आयंस हैं वो हैवी होते हैं, उनको ट्रैवल करने में टाइम लगता है टू रीच दिस पर्टिकुलर प्लेट. But electrons are light particle and they can easily, very easily, quickly, they can reach to the plate. तो जब भी ये प्लेट पे यहाँ पे आएंगे तो you will get a signal. एक क्लिक आएगा आपके पास, करंट का एक क्लिक आएगा, फिर करंट जीरो हो जाएगा because you don't have a conduction. Suddenly when the positive charge reaches, they again you will get a click. And when they reaches, they are slow, but when they reaches, they again get your click. So normally we focus on the electron collection. हम इसके collection पे focus नहीं करते हैं हम ज्यादातर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके एक नॉर्मल जो टाइम होता है दैट इज इन माइक्रोसेकंड. माइक्रोसेकंड का टाइम लगता है कलेक्शन इलेक्ट्रॉन के, और इनको लग जाता है हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोसेकंड जब वो ट्रैवल करते हैं. अगर आपका प्लेट का जो डायमेंशन है लेट अस से 1 सेंटीमीटर, तो रफली यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट टाइम आल्सो. आपने जो जनरेट किया है वो कितना फील्ड लगाया है, तो आपने पोटेंशियल लगा रखा है, इसमें अगर डी मैंने दे दिया आपको, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट हाउ मच फील्ड इज बीइंग एप्लीकेबल टू एनी पर्टिकुलर चार्ज. एंड इफ इट हैज अ मास, तो फील्ड आपका फोर्स में कन्वर्ट होगा, फोर्स आपका फिर मोमेंटम में कन्वर्ट होगा, या उससे आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, फिर आपको टाइम निकाल सकते हो. दैट इज वेरी इजी कैलकुलेशन, उसको करने की जरूरत नहीं है, हम उसको जान ही रहे हैं. बट देयर इज अ चांस कि हाँ ये पहले भी पहुंचेंगे एंड वी विल गेट अ क्लिक, एंड ये थोड़ा लेट पहुंचेंगे देन वी कैन अगेन गेट अ क्लिक. बट वी कैन डिसरिगार्ड दिस क्लिक आल्सो बिकॉज आप डबल काउंटिंग किसी रेडिएशन का नहीं करना चाहोगे, तो विल जस्ट फोकस ऑन द वन काइंड ऑफ इंटरैक्शन. तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर डन, व्हिच इज very easy to explain. आप इसको explain words में easily कर सकते हो. You have a potential which is going to collect the charges, and the charges is produced by the ionization of the incoming radiation. And there is one formula that how many ions are generated. This is something like an ion pair. How many ions pair N will be generated? That has a formula which is E divided by W. And W is the energy required to make a ion pair, means electron and ion pair. आपने मटेरियल, जैसे एग्जांपल के लिए मैं गैस यूज कर रहा हूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना और नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना या आर्गन से इलेक्ट्रॉन निकालना, दे ऑल विल हैव अ डिफरेंट नंबर. तो W की वैल्यू नॉर्मली जो वेरी करती है, ऑब्वियसली वो बाइंडिंग एनर्जी के आसपास की वैल्यू होगी. तो W की वैल्यू फॉर डिफरेंट गैसेस वी हैव द लिस्ट. I think I have written the notes. No, I have not written the notes. But roughly, this value varies from 20 electron volt to 30 electron volt for most of the gases. जो भी आपके ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आपका आर्गन हो गया, नियॉन हो गया. तो this is the particular variation. Means this much energy is required to produce one single ion and electron pair. ठीक है? So this is the rough value. Means how many particles will be generated, means how many ions pair will be generated. जितने ये पेयर्स होंगे करंट की वैल्यू उसी पे प्रोपोर्शनल होगी. ये ध्यान रखना. अगर एग्जाम में करंट भी कई बार आ जाते हैं निकालने के लिए कि करंट की वैल्यू कितनी होगी इफ E एंड W इज गिवन टू यू, तो आपको पहले N कैलकुलेट करना है. और दे कैन ऑल्सो गिव यू द टाइम कि भाई 1 सेकंड में मुझे सारे पार्टिकल को कलेक्ट करना है, या मेरा इंस्ट्रूमेंट 1 सेकंड में इन जो आपका आयनेशन जनरेट हुए हैं, जो भी चार्जेस आपके जनरेट हुए हैं, इन 1 सेकंड यू कैलकुलेट. सो यू कैन इजीली से कि जितने मेरे चार्जेस जनरेट हुए डिवाइड बाय 1 सेकंड, दैट इज द करंट वैल्यू. हो सकता है नहीं हो सकता भाई. करंट का डेफिनेशन क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम. तो कितने टाइम में आपने कितने आयंस कलेक्ट किए यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने कलेक्ट किए. सो यू कैन यू नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन जनरेटेड because you know the formula, you know the incoming radiation की energy क्या थी. And if you have the current, then you can predict what is the energy of the incoming radiation if you know the value of current. Because current आपको क्या idea दे रहा है? How many charge has been collected within a given time. दोनों का रिलेशन क्लियर हो गया कि करंट आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस करंट का जो इंटेंसिटी है या करंट का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस ई वैल्यू. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ठीक है. आपकी आउटपुट करंट से यू कैन इजीली प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ ई. दिस इज द फॉर्मूला. ये एग्जैक्टली तो नहीं होता है, बट इफ यू अज्यूम
इफ वी अज्यूम कि जो सारा एनर्जी डंप किया उसने आयनाइजेशन के फॉर्म में ही डंप किया है, सो दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग हियर, ये अजम्पशन है। 1% 2% चांस हो सकता है कि वो दूसरे फॉर्म में भी एनर्जी को डंप कर रहा है, कोई एक्साइटेशन कर रहा है, कोई फोटोन एमिट कर रहा है, कोई और डिफरेंट इंटरेक्शन कर रहा है, तो दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। बट 99, at least 95%, more than 95%, it will do this process only. So we can easily calculate, for example, if alpha particle is having 20 mega electron volts of energy, 20 ज्यादा हो गया, 10 कर लेते हैं, 20 का होता नहीं है, 10. If the alpha particle is of this much of energy, then how many particles will be generated? That will be simply 10 mega electron volt, and it will generate how many ion pair? One pair को generate करने के लिए let us assume कि हमारे पास argon है, argon की वैल्यू 32 होती है, जहाँ तक मुझे नंबर याद है, हम 30 यूज कर लेते हैं. Let us use 30 electron volt. This much is required to produce one pair, and this energy will produce how many pairs? Just divide the number. कितना हो जाएगा? This is 1/3 mega mega means it will be 10/3 into 10 to the power of 5. So that will be roughly 3 into 10 to the power of 5 ion and electron pair. ये तो बहुत ही कम है वैसे. अगर मैं बोलूं कि 1 सेकंड मुझे लगता है इसके कलेक्शन में, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा नहीं है तो करंट की वैल्यू क्या होगी? 3 into 10 to the power of 5 divided by 1 second. ये तो बहुत ज्यादा हो गया करंट. करंट ऐसी हो, अच्छा सॉरी, करंट अभी ये तो मैंने नंबर सिर्फ लिया ना. आई एम सॉरी, नंबर, दिस इज नंबर. इफ यू टॉक अबाउट द करंट देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द ई आल्सो. चार्ज पर यूनिट टाइम है ना, तो चार्ज को जो मल्टीप्लाई करोगे, मैंने तभी सोचा कि इतना बड़ा करंट का वैल्यू तो कभी आ ही नहीं सकता. वी गेट इन मिली एम्पियर्स और माइक्रो एम्पियर, वी हैव टू एम्पलीफाई दैट आल्सो. सो दिस इज 3 into 10 to the power of 5 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 divided by 1. So that is what, कितना हो गया? करो जरा कैलकुलेट. ये 3 into 15, that is 45, 4.5 के आसपास आएगा, उससे थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, बट 4.5 मैं लिख रहा हूँ, into 10 to the power of how much this one? Minus 14. So this is very low value. Pico से भी कम हो गया. So one improvement that being done is decrease the collection time. If you do this collection in a microsecond, then your current is going to improve. Charge तो उतने ही रहेंगे, चार्ज आपके जो जनरेट हुए हैं वो तो वही रहेंगे, बट इफ दिस इज डन इन 1 सेकेंड, कलेक्शन आपका 1 सेकेंड ले रहा है. अगर मैं माइक्रो सेकेंड पे चला जाता हूँ, अगर मेरा कलेक्शन, मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट इतना अच्छा बनाया, उसमें वोल्टेज अच्छे से लगाया है और कलेक्शन मैंने बहुत अच्छा रखा है, डी का डिस्टेंस मैंने प्लेट्स का कम रखा है, सो आई गेट अ कलेक्शन टाइम व्हिच इज ऑफ माइक्रो सेकेंड. देन फॉर द सेम वैल्यू ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, जो मेरा ये है, करंट का जो पीक देगा वो कितना देगा? 3 into 10 to the power of 5 into E divided by 10 to the power of minus 6 seconds. So now it will be 11 or 19, यानी 4.5. Okay, 4.5 into 10 to the power of कितना हो गया? ये 11 हो गया था ना, minus 19 है, कितना हो गया? 8 आ गया. तो एटलीस्ट थोड़ा सा मेरा माइक्रो एम्पियर में करंट आ गया है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ प्रिसाइज योर इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट द चार्जेस, कितना फास्ट वो कर पाता है. दैट इज व्हाई ऑल दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. ये जो सारे रिएक्शंस हो रहे हैं ना, दे आर वेरी फास्ट. इवन व्हाट वी हैव टू रिलाई, वन मोर थिंग व्हिच वी हैव मिस्ड, दैट अगर आपके पास, आपने तो assumption ये भी कर लिया कि एक ही रेडिएशन आ रहा है. इफ यू गेट hundreds of radiation in a second, तो आपकी कैलकुलेशन मिस कैलकुलेट हो जाएगी. आप क्या कैलकुलेट कर लोगे कि 100 रेडिएशन से जो आपके चार्ज पर, आप इमेजिन करो कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका 100 टाइम्स एनर्जी है. इफ यू डू द कलेक्शन, तो योर कलेक्शन शुड बी वेरी फास्ट. तो नॉर्मल जो टाइम है ना, कलेक्शन टाइम है आपके चार्ज का, जब आयनाइजेशन चैम्बर में आपके चार्ज जनरेट हो गए, दैट टेक हार्डली अ माइक्रो फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकेंड. यू हैव टू मेंटेन दैट स्पीड. अगर वो स्पीड मेंटेन नहीं करोगे तो यू विल लूज द इंफॉर्मेशन. अगर इसी टाइम पे 2 अल्फा पार्टिकल आ गए, तो आप प्रेडिक्ट क्या कर लोगे कि आपका जो करंट वैल्यू है वो शायद 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल है. नो, 20 नहीं है, एक्चुअली 2 अल्फा पार्टिकल आ गए थे, दोनों ने जनरेट किया था.
तो वी हैव टू सेपरेट दैट आल्सो। तो कई बार होता है प्रॉब्लम कि जो इनकमिंग रेडिएशन की इंटेंसिटी कभी ज्यादा होती है, तो वी गेट अ प्रॉब्लम कि भाई एक आ रहा है पार्टिकल की, दो आ रहा है या तीन आ रहा है, वी डोंट गेट द आइडिया प्रॉपरली। तो उसके लिए हमें फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है विच गिव मींस दे कैन सेपरेट दिस इवेंट्स आल्सो, कि एक इवेंट हो रहा है कि दो इवेंट हो रहा है या तीन इवेंट हो रहा है, दे कैन सेपरेट। यानी आपको एटलीस्ट जो कलेक्शन टाइम है उस इवेंट से आपको छोटा रखना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर एक सेकंड में मेरे पास 10 आ रहे हैं, तो 1 सेकंड को 10 से डिवाइड करें, 0.1 सेकंड में एक आ रहा है रेडिएशन। तो 0.1 सेकंड से नीचे का मेरा कलेक्शन टाइम होना चाहिए, सो दैट आई विल वेट फॉर द अनदर रेडिएशन, otherwise there will be a mismatching. तो all these things you have to take care before designing the instrument. तो उसके पीछे पूरी डिटेल थ्योरी है कि उसका प्रोफाइल पीक कैसा होता है, वो कैसे डिके करता है। फिर हम कैपेसिटर भी त्यागी जी कैपेसिटर भी अटैच करते हैं, और हम उसका कलेक्शन भी, मतलब एक टाइम कांस्टेंट भी रखते हैं कि आपको कितने टाइम में कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर उसको आपको रिजल्ट देगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल। द बेसिक आइडिया इज दिस फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर, कि अगर एग्जाम में आता है कि एक आयोनाइजेशन चैम्बर है, उसमें हमारा जो इनकमिंग रेडिएशन उसकी एनर्जी ये है, और उसमें जो हमने गैस यूज किया है उसका एक इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जनरेट करने के जो नीडेड है एनर्जी, दैट इज अराउंड दिस मच वैल्यू, then how many pairs will be there, and if that instrument is collecting your charges within a microsecond or nanosecond, then what will be the current output pulse, so that you can easily calculate. एक एग्जांपल मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि चार्ज का कलेक्शन हमें फास्ट करना है, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि डी डिस्टेंस आपका ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको एक लिमिटेड फॉर्म में ही आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपका आप आप ये भी नहीं चाहोगे कि आपने जो गैस फिल किया है और आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पोटेंशियल जो अप्लाई करो, इसकी इतनी वैल्यू इंक्रीज कर दो कि खुद से डिस्चार्ज हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका जो डाइलेक्ट्रिक है दे कैन डिस्चार्ज देमसेल्फ, यानी कोई रेडिएशन भी नहीं आया एंड दे हैव बीन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मीनिंग क्या है? दे आर सेपरेटेड, देयर इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन पुल्ड आउट। तो जब पुल्ड आउट हो गया तो दे अगेन गिव अ पल्स, यानी रेडिएशन नहीं भी आया, यू आर गेटिंग अ क्लिक। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो यू हैव टू कीप दिस वैल्यू वेरी लो, इतना लो रखो कि आपका ये जो गैस आपने फिल किया है उसका जो डिस्चार्जिंग के चांसेस जीरो रहे। तो दैट यू हैव टू मेंटेन। व्हाट यू कैन डू, पैरेलल प्लेट से थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट दूसरा एक और कैपेसिटर करता है जो आपने पहले से ही पढ़ रखा है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, that is, I have not made the profile, but there is a graph which we get for this particular design. Let me just draw it here. जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है उसको आप इंक्रीज कर रहे हो एंड यू आर कलेक्टिंग द करंट। सो व्हाट विल हैपन, इट इज इंक्रीजिंग एंड देन इट बिकम कांस्टेंट। सो दिस इज अ प्रोफाइल, यानी आपका कलेक्शन क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो धीरे धीरे इंक्रीज करो तो कलेक्शन करंट की वैल्यू थोड़ी फास्ट होती जाएगी। जैसे हमने यहाँ कैलकुलेशन किया, इफ यू आर वेरी स्लो वैल्यू, आपने पोटेंशियल कम अप्लाई किया तो slowly the electron will move towards the electrode and their current is less. As you increase the potential, the electron will move faster and they get a good collection at a lesser time and you get a current. But if you go on increasing the potential, there is a staticness. That means static क्यों आ रहा है, हम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा रहे हैं, एटलीस्ट ये जा रहे हैं हम 100 वोल्ट तक, उससे ज्यादा नहीं। तो 100 वोल्ट तक अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो मुझे एक स्टैटिक वैल्यू मिल जाती है। मींस एक ऐसा टाइम आ जाता है कि अब इलेक्ट्रॉन को इससे ज्यादा एनर्जी आप दे दो तब भी वो उतने टाइम में ही आपका रीच करेगा, बिकॉज देयर आर अदर इफेक्ट्स। जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रोड की तरफ तो इट इज इंटरेक्टिंग विद द एटम आल्सो, बीच में एटम भी है जो अनन्यूट्रलाइज्ड एटम है तो उससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, कई बार उसको आयनाइज कर देता है। तो देयर आर सो मेनी प्रोसेस गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, मींस देयर इज अ सैचुरेशन। आप वोल्टेज बढ़ाने से आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है।
that if you go on increasing after certain, this is around 40 or 40 वोल्ट, यू कैन से 40 to 100 तक में हमारा सैचुरेशन आ जाता है. उससे ज्यादा बढ़ा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना है. अब उससे आगे जाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि आपका गैस जो है वो भी डिस्चार्ज कर सकता है. तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई उस चीज तक हमें वोल्टेज नहीं इंक्रीज करना है. तो वी हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज अप टू सर्टेन लिमिट ओनली. So this is a profile peak. This is kind of current value with respect to voltage you get. तो इसको हम आयोनाइजेशन केस कहते हैं. अभी इसी को हम ना आगे एक्सटेंड करेंगे दूसरे केसेस के लिए, और ये ग्राफ उस केस का पार्ट बन जाएगा. तो वो अभी क्लियर हो जाएगा कि इस ग्राफ का मीनिंग क्या था, क्यों ये रिक्वायर्ड था. और इसी ग्राफ में आपके पास मान लेते हैं कोई E1 E अल्फा 1 कर देते हैं, यानी कोई पार्टिकल था, अल्फा 1 पार्टिकल था जिसकी एनर्जी डिफरेंट थी. अब अगर आप दूसरे एनर्जी यानी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक पार्टिकल इसमें एंटर होता है जिसकी एनर्जी इतनी है अल्फा पार्टिकल की, तो दैट विल गिव यू दिस काइंड ऑफ कर्व. ठीक है, यानी वो ऑब्वियसली कम होगा, ये नंबर कम हो जाएंगे, ये नंबर हाफ हो गए तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हाफ हो जाएगा. कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ होगा तो करंट भी हाफ हो जाएगा. तो यू गेट अ डिफरेंट वैल्यू एज पर योर एनर्जी. मीन्स एनर्जी की वैल्यू आपके जो करंट की वैल्यू होगी वो एनर्जी पे प्रोपोर्शनल होगी. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. अब एक कहा जाते हैं हम दूसरे केस में, जो सेकंड काइंड ऑफ चैम्बर है, व्हिच इज प्रोपोर्शनल काउंट. अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे, इसके डिजाइन को मॉडिफाई करेंगे कि हमारा डिजाइन भी अच्छा हो जाए और हमारा कलेक्शन भी फास्ट हो जाए और लोअर पोटेंशियल पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अप्लाई कर सके. At lower potential we can apply more electric field, क्योंकि पैरेलल प्लेट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डी पे डिपेंड करेगा. तो डी का साइज बहुत क्लोज रख दोगे तो उसमें पार्टिकल एंटर करेगा और वो आयनाइज करेगा प्रॉपर्ली, नहीं करेगा वी डोंट नो. तो वी हैव टू कीप की साइज भी ठीक हो बट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इंप्रूव हो जाए फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ, यानी 100 वोल्ट पे जो मेरा पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उससे मुझे ज्यादा चाहिए. तो डिजाइन में क्या चेंज करेंगे, व्हाट वी विल चेंज if I want to have a more electric field for a given same value of potential. So what design of a capacitor you can make for such case? कैपेसिटर का कोई और डिजाइन होता है? एक पैरेलल प्लेट के अलावा भी कोई कैपेसिटर होते हैं या नहीं? ये गेस्चर से नहीं बता पाओगे. चलो मैं इतना ही बना के छोड़ देता हूँ. पहले आप नाम बताओ उसके बाद आगे बढ़ेंगे. और कौन से होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं एंड देयर इज अ सिलिंड्रिकल आल्सो. स्फेरिकल इज गुड बट स्फेरिकल भी यूज कर सकते हैं बट वी यूज सिलिंड्रिकल. सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में आप पोटेंशियल तो सेम ही रख लो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में इंप्रूवमेंट हो जाती है. और कहाँ होती है वो मैं बताया था आपको, क्योंकि उसका जो इक्वेशन है दैट इज डिफरेंट. सो व्हाट वी डू, वी हैव अ इलेक्ट्रोड एट द सेंटर. ये नॉर्मली हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और जो आपका ये कर्व सरफेस है आपका सिलेंडर का वो नेगेटिव होता है थ्रू आउट. So you just connect this with resistance and then there is a high voltage low battery is there and it is connected to your this surface. ये आपका नेगेटिव का हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया. Now the electric field from this central electrode that is equal to, क्या फॉर्मूला होता है, V डिवाइडेड बाय, जो आपने V यहाँ पे लगाया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, V डिवाइडेड बाय R ln ऑफ B बाय A. क्या है ये सब, R क्या है, R क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस, यानी इस इलेक्ट्रोड से आप कितने दूर हो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा. जब आप क्लोज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट.
यहाँ पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफरेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री, वो आर पे डिपेंड करेगा। इवन ये फैक्टर भी है, बी इज व्हाट, कैथोड इनर रेडियस, यानी ये सेंटर से ये, दिस इज बी। व्हाट इज ए? एनोड वायर रेडियस। इस एक बार होल्ड ऑन करो। सुनो, ऐसा करते हैं कि क्लास प्रोपोर्शनल काउंटर कल ही, मतलब नेक्स्ट मंडे शुरू करते हैं। आई विल लीव यू 20 मिनट पहले मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एफडीपी में उधर बुला रहे हैं, तो आज मैं थोड़ा पहले ही छोड़ रहा हूँ आपको, ठीक है? वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज ए एंड बी लिख दिया मैंने, वो दोबारा हम शुरू करेंगे इसको। तो पैरेलल प्लेट का क्लियर हो गया, जो हमारा पहला था आयोनाइजेशन चैम्बर, दैट इज क्लियर। The formula I have given to you, and how many particles you can easily calculate, how many pairs will be generated depending upon the E, and that the current, how you are getting the current, और current की वैल्यू कैसे मैनेज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, by the how much time you take for the collection of these generated ion pairs, ठीक है? तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे आयोनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। आज हम यही करते हैं, क्योंकि अभी उसमें टाइम लगेगा एंड आई वोंट बी एबल टू फिनिश इन अ प्रॉपर वे, तो बेटर है कि आपको फ्री कर दूं, ठीक है? So let me just close this and stop the recording. आज आपको छुट्टी मिल गई थोड़ी पहले, वैसे ना अगले क्लास से सबको इतने पहले छुट्टी मिल जाएगी, और इस 20 मिनट में बाकी बच्चों को, दो दो बच्चों को वाइवा देना है। तो आगे से जो क्लासेस छूटी होंगी, बिकॉज हमारे पास डिटेक्टर वाला पार्ट रह गया और पार्टिकल वाला रह गया, तो हम अब 15 दिन पहले खत्म कर लेंगे अपना सिलेबस, ज्यादा नहीं लगेगा। मे बी मैं फास्ट मूव कर रहा हूँ, बट आपका पेस मुझे समझ में नहीं आया कभी कि आपका पेस क्या है ग्रैब्स करने का, ज्यादा है कम है, कुछ पता ही नहीं चला मुझे। तो इसीलिए मैंने अपने पेस से खत्म कर दिया। एंड स्टॉपिंग द स्क्रीनिंग, स्क्रीन शेयरिंग एंड recording also.